Hello friends, how are you doing? This is Gaurav Anand. Today I am going to tell you one very beautiful story. This story is about the friendships of three musketeers. You must be wondering what I'm talking about. As a banker, am I exploring something on my own and just narrating stories to you? But this is not a fact. I really have found something very substantial. Three young men have decided to do something on their own, and that's going to change the face of this village. Few years down the line from now, you can see them doing excellently well in their profession. So let's meet the three musketeers one by one. What's your name, friend? Chetan Kadolia. Okay, and what's your qualification? I am graduate from IPS Academy in Fire Technology and Safety Engineering. Okay, then how come you had this idea that you will venture into a dairy project like this? मुझे बिजनेस मतलब शुरुआत से ही बिजनेस करने का था. कॉलेज के बाद मैंने जॉब भी करी. उसके बाद फिर मुझे ये स्टार्टअप करा हमने मिलके और डेयरी बिजनेस में आए हैं यहाँ पे. हमारा मतलब मकसद ये है कि लोगों तक फ्रेश दूध पहुँचे सीधा निकलते ही डेयरी से. And what about you? What's your name, my dear friend? सुमित चौधरी. Sumit, what is the concept behind this brand name, Milkame? Just curiosity, joining just milk to milk, Milkam, and easy to pronounce. Okay, so they are doing this work together. That's why they have thought that let's give it a name, Milkame. Literally in a vernacular language, they have a practice to say, चलो मिलके ही काम करते हैं. तो फिर Milkame has come to existence just because of this kind of thought process. This is really very interesting. So let's meet the third musketeer. Hello. What's your name? I am Piyush Bagwala. Okay, Piyush. Just walk us through the story. You have been doing this thing for the last 7 years and you have had your own experiences, some ups and downs in your lives. But you stayed together, that's the most important thing. So just walk us through that. जस्ट ये हमारा पहले से फैमिली बिजनेस था जो कि ओल्ड मॉडल पे काम कर रहा था. तो हमने सोचा कुछ नया करें इसके साथ. फ्रेश मिल्क तो लोगों को दे ही रहे हैं. अब हम नई उसमें भी आ रहे हैं कि लोगों को जो नीड्स हैं बिजनेस में, पॉस्चराइज मिल्क बहुत लोग प्रीफर करते हैं, तो वो भी हम दे पाएँ. So what's your planning? So how do you see yourself doing wonderfully good in this business? 5 years down the line, where do you see yourself? आज से 5 सालों के बाद. साची और अमूल के साथ में मिल्क का भी नाम रहेगा. Very good, very good. So do you have any planning? How will you execute that? It's easier said than done. We will have our names along with the likes of Sachi and Amul. But is there any planning in place right now? हम कस्टमर के साथ साथ बिजनेस को भी जोड़ते रहेंगे और एक्सपांड करते रहेंगे धीरे धीरे. Okay. एक जगह पे नहीं रुकेंगे. So what is that expansion plan all about? What you are going to do and how is going to be different and unique from others? अभी हम पाश्चराइजेशन यूनिट डाल रहे हैं तो पाश्चराइज मिल्क मिलेगा लोगों को. और हमारा मतलब बिज़नेस टू कस्टमर के अलावा बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल भी है. जैसे जितने भी कैफ़े हुए वहाँ पे जो मिल्क जाता है वहाँ पे सप्लाई करने का हमारा मतलब टाइप करेंगे जो बड़े ब्रांड से कैफ़े के, जो बाहर से अभी जैसे चाय सुट्टा बार हुआ, MBA चाय वाला हुआ, इनसे. क्या भविष्य में आपकी ऐसी भी प्लानिंग्स है कि आपका कोई ऐसे जैसे नकराली ढानी, चौकी ढानी जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट पे भी आप आगे काम? हम उस कॉन्सेप्ट पे भी काम करने वाले हैं कि लोगों को गांव से जुड़े लोग, बहुत सारे लोग जैसे कि गांव देख नहीं पाते बच्चे. आज के टाइम पे ऐसा है कि जो फैमिलीज़ है वो शहर में शिफ्ट हो चुकी है, तो वो गांव जाने का उनके बच्चों को कभी मौका ही नहीं मिलता है. तो एज अ पिकनिक स्पॉट गांव की लाइफ लोगों को उससे रूबरू करवाएंगे फ्यूचर में. अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा फीडबैक मिला और किस तरह का रिस्पांस है मार्केट में आपके इस थीम को लेके? इस थीम को लेकर अगर हम उसमें देखते हैं जैसे शहर में देखते हैं, तो शहर में तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दूध का काम कर रहे हैं. और गांव में अगर यही बात करते हैं आप, और पूरा फ्रेश मिल्क मिलता है उनको. जैसे ही मिल्किंग होती है हम उनके यहाँ डिलीवर कर देते हैं. मतलब एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उनके घर की गाय ही ऐसा है पूरा कि दूध निकल के आएगा और सीधा घर पे आ जाएगा हमारे.
हाँ, नहीं अभी आप कुछ कह रहे थे कि शहर में तो आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है कि यहाँ गांव में ऐसा है कि entrepreneurship। बीटेक किया है मैंने, हम्म। बीटेक आईटी, हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, तो अब लोगों का सोच तो आप समझ ही सकते हैं कि अच्छा। गाय भैंस पाल ली इसने। तो क्या बोलते हैं आपको गांव में? कुछ नहीं बोलते, दूध वाला दूध वाला बोलते हैं। हाँ, अच्छा। तो ये दूध वाले जो हैं एक दिन कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे कि लोग कहेंगे कि हमारा बच्चा भी दूध वाला बने। कुछ ऐसे ही प्लानिंग है आपकी जी कि? सर, वही प्लानिंग है इन फ्यूचर, मतलब कि हमारी स्टोरीज आए, टेडेक्स में बोलने का मौका मिले। वाह। आपकी यूनिवर्सिटी में बोलने का मौका मिला। अच्छा, आप लोग को आप लोग काम करते हैं, आप लोग के बीच में कभी खिटपिट होती है कि कैसे आगे इसको रन करना है? कभी ऐसा आइडिया है कि नहीं ख़त्म कर देंगे इसको? नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं आया है। ऐसा कभी सोचा नहीं सर। बाकी कभी अगर सोच भी लेते तो ये सोचते हैं कि वापस से शुरू करना पड़ जाएगा। अच्छा, बस यही है, इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे ही बढ़ते जा रहा है। वाह भाई, फिर से शुरू ना करना पड़े, हमारी मेहनत फिजूल ना चली जाए, इसी सोच के साथ हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा सोचना है इन तीनों मस्कीटियर्स का। 3 young entrepreneurs, they are doing good and they believe in their abilities. People will have negative things to say about them and about their work, but they are determined that they will leave no stone unturned to realize their dream, and they want to compete with the likes of Amul and Sachi. So this itself is a very, very big story. So I hope this video, once people will watch this video after 10 years, they will simply wonder how could these guys stay so consistent and they stayed the course, because they are going to create a history. So all the very best to all the 3 Musketeers. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।